آپ کے ساتھ شوگر کے انتہائی حساس موضوع پر بات کروں گا۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بتایا گیا۔ مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی تھا کہ بیمار انسانیت کو شفا سے ہمکنار کیا جا سکے۔ شوگر کیسے ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، پاکستان میں شوگر کی شرح کتنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں آپ کو اس بیماری کی مینجمنٹ بھی بتاؤں گا، کیونکہ بیماری پر قابو پانے کے لیے ادویات تو آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن بیماری کی ہومیوپیتھک مینجمنٹ پر شاید ہی کسی نے زور دیا ہو، کیونکہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان میں شوگر کی بیماری کی شرح بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ 2021 میں پاکستان میں 30 ملین بالغ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا تھے، جو کہ 2019 کے مقابلہ میں 70% سے زیادہ ہیں۔ 4 میں سے 1 مرد و عورت شوگر کی بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی نسبت شوگر کے حوالے سے سرفہرست ہے۔ اس خطہ میں دن بدن شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پینکریاز یعنی لبلبہ کے چھوٹے خلیے، جنہیں آئلٹ سیلز کہا جاتا ہے، یہ ہارمون انسولین تیار کرتا ہے، جو کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر بلڈ شوگر میں تبدیل کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں مریض کے اپنے ہی سفید خلیے پینکریاز میں جمع ہوتے رہتے ہیں، جو پینکریاز کے خلیات پر حملہ آور ہو کر آئلٹ سیلز کو تباہ کرتے ہیں، جس سے شوگر پیدا ہوتی ہے۔ آئلٹ سیلز کو بیٹا سیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لبلبہ میں ریت کے دانوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف ڈائبٹیز دیکھیں تو شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے: ڈائبٹیز انسیپیڈس پولی یوریا، اس میں پیشاب بہت زیادہ کثرت سے آتا ہے، لیکن اس میں شوگر کے مالیکیول نہیں ہوتے۔ ڈائبٹیز ملائٹس، اس میں جو مریض پیشاب کرتا ہے اس میں شوگر کے مالیکیول ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز ملائٹس میں پیشاب کے اندر شوگر موجود ہوتی ہے۔ شوگر بنیادی طور پر میٹابولزم میں ڈسرپشن کا نام ہے۔ جس طرح آپ کا جسم خوراک کا استعمال کرتا ہے، ویسے ہی پینکریاز بھی وہی کام کرتا ہے۔ ڈائبٹیز ملائٹس میں جسم انسولین پیدا نہیں کرتا یا اس کا رسپونڈ ہی نہیں دیتا۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو جسمانی توانائی کی پیداوار اور نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جسم میں غذا کس طرح سے میٹابولائز ہوتی ہے۔ نارمل میٹابولزم میں کھانا غذائی نالی کے ذریعے معدے اور چھوٹی آنتوں میں جاتا ہے، جہاں عملہ نظام اس میں سے کچھ کو شوگر یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جو بلڈ سٹریم میں داخل ہوتا ہے۔ گلوکوز کی سطح میں اضافے کا احساس کرتے ہوئے لبلبہ کے بیٹا سیلز انسولین کو خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک ہارمون ہے جو گلوکوز کو جسم کے خلیوں میں داخل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خلیے توانائی کے لیے گلوکوز کا استعمال کرتے ہیں یا بعد میں چربی کے طور پر ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ میجر فارمز آف ڈائبٹیز: ٹائپ 1 ڈائبٹیز، شوگر کے تقریباً 20 میں سے ایک شخص اس قسم سے متاثر ہوتا ہے۔ پینکریاز کسی طرح کی کوئی انسولین پیدا نہیں کرتا، یا اگر کرتا بھی ہے تو وہ مقدار ناکافی ہوتی ہے، اور ایک شخص کو روزانہ انسولین کی مطلوبہ مقدار کا ملنا اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ قسم عام طور پر 30 سال کی عمر سے پہلے حملہ کرتی ہے۔ اس قسم کی سب سے عام شکل عام طور پر زیادہ وزن والے لوگوں میں 40 سال کی عمر کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ پینکریاز کی طرف سے تیار کردہ انسولین خون میں گلوکوز کو بننے سے روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ موٹاپا انسولین کے خلاف مزاحمت بڑھاتا ہے اور شوگر کی ٹائپ 2 قسم ہونے میں بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب بات ان لوگوں کی کرتے ہیں جنہیں شوگر تو ہوتی ہے لیکن وہ انسولین استعمال نہیں کرتے۔ اس کو نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس قسم کی شوگر کا آغاز سست ہوتا ہے اور عام طور پر اس کے ساتھ کوئی علامت بھی نہیں ہوتی۔
ये आम तौर पर 40 साल की उम्र के बाद होती है। वज़न में कमी और खुराक पर कंट्रोल अक्सर ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में ले आता है। मुनासिब वर्जिश और तजवीज़ शुदा होम्योपैथिक अद्वियात तकलीफ़ को दूर करने में मौसर साबित होती हैं। इसके बाद इन लोगों की बात करते हैं जो शुगर में मुब्तला होते हैं। इन्हें इंसुलिन की शदीद ज़रूरत होती है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। इस किस्म की शुगर में जिस्म इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, जिसकी वजह से बैरूनी तौर पर जिस्म में इंसुलिन फराहम की जाती है। जैसे हमने ऊपर शुगर की टाइप 1 और टाइप 2 का जिक्र किया है, इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं होता। ऐसे लोगों की शुगर को इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों और नौजवान बालगों में होती है और इंसुलिन की कमी या मरीज़ की इंसुलिन शुगर को ग्लूकोज में तब्दील करने के लिए वर्क नहीं करती है। मुनासिब मिकदार में और मुनासिब सूरत में इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज के मालिक्यूल्स खलियात में दाखिल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये खून में ही रहते हैं। आखिरकार ये पेशाब में दाखिल हो जाती है, जिससे पेशाब कसरत से आता है। मुनासिब होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करवाने के लिए पेशाब और खून के टेस्ट ज़रूरी होते हैं। डायबिटीज़ एंड इट्स बैड इफ़ेक्ट्स। शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से जिस्म पर इस बीमारी के बहुत ही बुरे असरात मुरतब। यहाँ सेहतमंद खाने के लिए चंद तजावीज़ मुंदरजा झेल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लेक्स हालत में खाएं, जैसे साबुत गंदम के आटे की रोटी, जई वगैरह। ये खून के बहाव में आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होते हैं ताकि लबलबा को इंसुलिन की मुनासिब मिकदार पैदा करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। पपीता, खरबूजा, ग्रेपफ्रूट, अमरूद, ऑरेंज जैसे फल भी अच्छी ग़िज़ा हैं। मुर्गी या दूसरे परिंदों की टांगों और रान के गोश्त से परहेज़ करें और इसके बजाय सफ़ेद गोश्त जैसे छाती का गोश्त खाएं। जुवेनाइल टाइप 1 डायबिटीज़ शुगर की ये किस्म नाबालग बच्चों पर हमला करती है और इनकी नशोनुमा को रोक देती है। इसका इलाज इंसुलिन से मुमकिन नहीं है। इंसुलिन मरीज़ को सिर्फ ज़िंदा रहने में मदद करती है, लेकिन ये गुर्दे की खराबी, अंधेपन, नर्व डैमेज के मुख्तलिफ अज़ा की एम्पुटेशन का सबब भी बनती है और ना ही ये हार्ट अटैक और फालज जैसी पेचीदगियों को रोक सकती है। ऐसे मरीज़ों को रोज़ाना इंसुलिन के मुतअद्दिद इंजेक्शंस तजवीज़ किए जाते हैं और एलोपैथिक इलाज में दिन में कई बार ब्लड शुगर की इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती हैं। इंसान में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी पैदा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा है, इसीलिए आज इंसान साइंसी इजादात की बदौलत बहुत सी पेचीदा बीमारियों पर काबू पाने में दस्तरस रखता है। अब हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट पर बात करते हैं। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो इस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ इंसुलिन के साथ कुछ एनाल्जेसिक अद्वियात के इस्तेमाल के साथ मरीज़ को आराम मुहैया किया जाता है। इसके बरक्स अगर मरीज़ होम्योपैथी इलाज मुआवजा को पसंद करता है तो होम्योपैथी में भी बड़े वसी तरीके से शुगर के मरीज़ों की मैनेजमेंट की जा सकती है। ऐसा कि शुगर की पेचीदा सूरत हाल में नेट्रम म्योर को अव्वलीन तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये पेशाब में शुगर को रोक सकती है। अगर नेट्रम म्योर पेशाब की बुनियादी दवा या मिजाजी दवाई बनती है तो इसके साथ इसकी सेटेलाइट रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि सिजियम जैम वगैरह। ग्लिसरीनम 200 ये ऐसी दवाई है जो खून से शुगर को बहुत तेज़ी से खारिज करती है, इसलिए यहाँ पर ड्रेनेज रेमेडी या मिजाजी दवाई का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि नेट्रम म्योर की एक खुराक और 10 दिन बाद ग्लिसरीनम 200 की एक खुराक देंगे। फास्फोरिक एसिड टाइप की शुगर के मरीज़ों में आम तौर पर
फ्लोरिक एसिड के साथ फॉलो अप भी करेंगे। शुगर की बीमारी में सल्फ़र हाइपोटेंसी में इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके संगीन या ख़तरनाक नताइज ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसा कि फोड़े फिंसियाँ वगैरह निकल सकते हैं। यहाँ पर सल्फ़र की बजाय सोरानियम का इस्तेमाल करवाना ज़रूरी होता है। आर्सेनिक एल्बम या तो सिंगल दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है या एकोनाइट या दीगर तजवीज़ शुदा अद्वियात के साथ अदल बदल कर इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। इसी तरह डॉक्टर हैम्पल ने मर्कसाल, एकोनाइट और आर्सेनिक एल्बम को मुख्तलिफ ताकतों में अदल बदल कर इस्तेमाल करवा कर बहुत से मरीज़ों में कामयाबियां हासिल की हैं। आर्सेनिक एल्बम शुगर की इनिशियल स्टेज में इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर काम करती है, लेकिन बाद में इसे बतौर डीप एक्टिंग दवाई इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत होती है। फ्लोरिक एसिड बहुत सी अद्वियात के फेवरेबल एक्शन के बाद इलाज मुकम्मल करने में इंतहाई मौसर होती है। जैसे गैंग्रीन में स्केल कॉर के बाद फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल इंतहाई मौसर साबित होता है। डॉक्टर क्लार्क डायबिटीज़ इंसिपिडस की सूरत में यूरेनियम नाइट्रिकम, एपोसाइनम, काली नाइट्रिकम और सलेशिया तजवीज़ करते हैं, और डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए यूरेनियम नाइट्रिकम, ओपियम, आयरस वर्सिकुलरस, पैंक्रेटिनम, फास्फोरस और ख़ास तौर पर नेट्रम सल्फ, एसिड फास्फोरिकम, सेजीजियम वगैरह शुगर में लबलबे की सोजिश के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। डॉक्टर घोष सिफ्लेंड्रा इंडिका को डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत बड़ी दवाई समझते हैं। डॉक्टर बर्नवेल शुगर के इलाज में ग्राउंड रेमेडी के तौर पर आर्सेनिक एल्बम की बहुत सिफारिश करते हैं, जो पेशाब के रास्ते शुगर को जल्दी से निकाल देती है। इंसुलिनम ये दवाई 30 ताकत में बतौर इंटरकरंट दवाई इस्तेमाल करवाते हैं, और अमोनियम आयोडेटम, सिफ्लेंड्रा इंडिका, सेजीजियम को दीगर अद्वियात के तौर पर तजवीज़ करते हैं। मामूल के मुताबिक अगर काजेटिव फैक्टर या ट्रिगरिंग एजेंट मुतहर्रक हों, जैसा कि मेंटल शॉक की सूरत में सबसे पहले इग्नेशिया या ओपियम या आर्निका की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद शुगर की अद्वियात या होम्योपैथी की तजवीज़ करदा अद्वियात बेहतरीन तरीके से काम करेंगी। उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए होंगे। शुगर के इंतहाई हसास मौजू पर जितनी भी बातचीत हुई और इसमें जितनी भी अद्वियात का नाम लिया गया या अद्वियात बताई गई, अवामुन नास को बीमारियों से बचाने के लिए और उनकी बेहतर सेहत के लिए तजवीज़ की गई हैं। इन अद्वियात को बेहंगम या सेल्फ मेडिकेशन करने से गुरेज करें। अगर मसला या बीमारी ज़्यादा पेचीदा हो तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से लाजमी तौर पर चेकअप करवाएं। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।